بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ والوں نے غداری کی اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت سے گرا کر شہید کیا گیا، سر قلم کر کے یزید کو بھیج دیا گیا۔ شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل نے آخری پیغام لکھا مولا حسین کو اور لکھا کہ کوفہ بدل گیا ہے، لیکن ان کا قافلہ تب تک وہاں سے نکل چکا تھا۔ جب قافلہ سلبیہ یا بعض روایت میں جد کے مقام پر پہنچا تو ایک شخص آیا، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں پیغام۔ اس نے کہا مولا مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور ہانی بن عربہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں، اب آپ کے لیے کوفہ ویسا نہیں رہا۔ حضرت امام حسین کا چہرہ زرد ہو گیا، قدموں میں لرزش آئی اور ایک جملہ فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ مسلم نے ہمیں بلایا اور اپنی جان قربان کر کے ہمارا راستہ باز کر دیا، اب حسین علیہ السلام مسلم کے خون کا جواب دے گا، لیکن تلوار سے نہیں، قربانی سے۔ امام نے وہیں قافلے والوں کو جمع کیا اور فرمایا جو واپس جانا چاہیں جا سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کئی لوگ واپس چلے گئے، لیکن جو رہ گئے وہ وہی تھے جنہیں تاریخ نے اصحاب حسین کہا۔ حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے کی لگام تھامی اور فرمایا اب ہمارا راستہ کربلا کی طرف ہے۔ زمین خاموش تھی، مگر آسمان چیخ اٹھا کہ قربانی کا قافلہ چل پڑا۔ جب امام حسین علیہ السلام قافلہ قصر بنی مقتل کے قریب پہنچا تو یزیدی فوج کا پہلا دستہ سامنے آیا۔ اس کی قیادت کر رہا تھا حر بن یزید، ایک بہادر مگر یزیدی لشکر کا کمانڈر۔ حر نے آ کر امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور کہا مجھے حکم ہے کہ آپ کو روکوں اور کوفہ لے کر جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اگر تمہیں میرا آنا برا لگا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے جواب دیا مجھے حکم ہے، نہ آپ کو واپس جانے دوں نہ آگے بڑھنے دوں، اب فیصلہ دارالخلافہ میں ہوگا۔ امام نے حر سے ایک سوال کیا، کیا تم نے میرا خط پڑھا؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے؟ حر خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کوفہ والے اب یزید کے خوف سے چپ ہیں۔ 2 محرم 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو کربلا کی بنجر زمین پر روکا گیا۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے سے اتر کر زمین کو دیکھا، مٹی کو اٹھا کر سونگھا اور فرمایا یہی ہے وہ سرزمین جہاں ہمارے خون بہیں گے، جہاں سکینہ پیاسی سوئے گی، جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ یہ زمین کربلا تھی، یعنی غم، قربانی اور حق کی پہچان۔ امام حسین نے قافلے کو خیمے لگانے کا حکم دیا۔ سمر کا لشکر قریب آ چکا تھا اور عمر بن سعد کی فوج کربلا کے کنارے قیام کر چکی تھی۔ تعداد میں وہ 3000 تھے، زیادہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھی کل ملا کر 72 تھے۔ 7 محرم کو ابن سعد نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ حر یہ ظلم دیکھ رہا تھا، اس کا دل کانپ رہا تھا، مگر وہ ابھی یزیدی لشکر میں ہی تھا۔ بی بی سکینہ کی پیاس، بچوں کی ہچکیاں، خیموں کی خاموشی، یہ سب کربلا کی فضا میں گونج رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے بار بار یزیدی لشکر کو بلایا
بیعت کا انکار کرنے کی وجہ سمجھائی۔ انہوں نے فرمایا اگر تم مجھے واپس جانے دو تو میں چلا جاؤں گا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، اگر نہ مانا تو مجھ پر حجت پوری ہو چکی ہے، اب صرف قربانی باقی ہے۔ جو امام کو روکنے آیا تھا اب ضمیر کی عدالت میں جھک گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف روانہ ہوا، اور وہ سب سے پہلا جو یزیدی بن کر آیا تھا اور حسینی ہو گیا۔ کربلا کی سرزمین پر خیمے لگ چکے تھے، یزیدی لشکر نے گھیر لیا تھا اور پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بچوں کی پیاس چیخ میں بدلنے لگی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر صرف صبر تھا، کیونکہ ان کے سامنے حق کا علم تھا۔ وہ کمانڈر تھا جو سب سے پہلے امام کا راستہ روک لایا تھا، لیکن وہ دل سے یزیدی نہ تھا، بس دنیا کے حکم سے مجبور تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، جب اس نے بی بی سکینہ کی پیاس دیکھی، عباس کی خاموشی دیکھی، امام کی سجد روز نگاہ دیکھی، تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ رضی حر نے اپنی تلوار گرا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھا۔ لوگوں نے دیکھا یزیدی لشکر کا سپاہی اب رو رہا تھا۔ امام کے قدموں میں گر کر بولا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، حر تو آزاد پیدا ہوا اور آج تو واقعی آزاد ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بار بار یزیدی لشکر کو خط بھیجے، بات کے دلائل دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مجھے واپس مدینہ جانے دو تو میں چلا جاؤں گا، میں جنگ نہیں چاہتا ہوں، میں خونریزی سے بچنا چاہتا ہوں۔ لیکن عمرو بن سعد کو یزید سے حکم تھا، حسین یا تو بیعت کریں گے یا پھر سر قلم کر کے میرا تخت بچایا جائے۔ 9 محرم کی سب امام حسین علیہ السلام نے یزید لشکر کے سامنے آخری بار خطبہ دیا، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، تمہیں رسول اللہ کا نواسا قتل کرنے میں شرم نہیں آتی؟ مجھے قتل کرو گے تو قیامت کے دن کس چہرے سے اللہ کے رسول کو دیکھو گے؟ لیکن سناٹا تھا، کیونکہ لشکر آدھا ہو چکا تھا، دل بند ہو چکے تھے، صرف یزید کا حکم باقی تھا۔ 9 محرم کی رات تھی، چاند روشن تھا، لیکن خیموں میں خاموشی تھی۔ امام حسین نے اصحاب کو جمع کیا، چراغ گل کیا اور فرمایا، بیعت اٹھا لیتا ہوں، کل صرف حسین شہید ہوگا، تم جا سکتے ہو۔ لیکن سب نے ایک ساتھ جواب دیا، نہیں مولا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ اسی رات بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کے گلے لگ کر سوئیں۔ سوتے میں چونک کر اٹھیں اور بولی، بابا میں نے خواب میں دیکھا میری چادر چھینی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، سکینہ کل بہت کچھ چھینا جائے گا، لیکن تمہارا بابا صبر دکھائے گا۔ صبح ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، ساجدین نے نماز پڑھائی اور امام حسین نے تلوار اٹھائی، کیونکہ اب صلح کی امید ختم ہو چکی تھی اور صرف شہادت کی راہ باقی تھی۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کی سرزمین پر عاشور کا سورج طول ہوا، مگر اس سورج کی روشنی میں خون کی چمک تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے رات عبادت میں گزاری اور صبح ہوتے ہی سب اہل بیت کو جمع کیا۔ فرمایا، اے میرے پیاروں، آج اللہ کو تم سے وہ قربانی منظور ہے جس کی مثال قیامت تک نہ ملے گی۔ صبح کے وقت امام حسین علیہ السلام نے صف بندی کی، اصحاب اور اہل بیت کو الگ الگ خیموں کے آگے کھڑا کیا۔ دشمن کا لشکر 3000 اور حسینی قافلہ صرف 72۔ وفادار پہلے امام نے
حجت تمام کی، بار بار صلح کی پیشکش کی، لیکن عمر بن سعد نے حملے کا حکم دے دیا۔ پہلا حملہ ہوا اور ایک ایک کر کے اصحاب حسین میدان میں اترتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ اب اصحاب شہید ہو چکے تو امام حسین کے جوان بیٹے علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چہرہ ایسا تھا رسول اللہ کا عکس لگتا تھا۔ امام نے فرمایا، اے اللہ، اس جوان کو جنگ میں اتارتا ہوں جو تیرے رسول سے چہرہ، گفتار اور کردار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ بے شمار یزیدیوں کو جہنم رسید کیا، لیکن پیاس کی شدت تھی۔ علی اکبر خیمے کی طرف پلٹے اور کہا، بابا، پیاس نے نڈال کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، زبان نکالی تاکہ پیاس کم ہو جائے، مگر زبان بھی خشک تھی۔ فرمایا، بیٹا، کچھ دیر بعد نانا رسول تجھے سیراب کریں گے۔ علی اکبر دوبارہ میدان گئے۔ ایک نیزہ سینے میں پیوست ہوا، گھوڑا بگڑا اور علی اکبر زمین پر گر کر چیخ مار کر پکارا، بابا سلام۔ امام دوڑ کر میدان میں پہنچے، علی اکبر کے جسم کو اٹھایا اور کہا، جوان بیٹے کا جنازہ باپ اٹھائے، اس سے بڑھ کر قیامت کیا ہوگی۔ اب امام حسن علیہ السلام کے کم سن بیٹے قاسم آئے، عمر صرف 13 برس، چہرہ چاند سا، دل شیر سا۔ قاسم نے جنگ کی اجازت مانگی۔ امام نے انکار کیا، بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ قاسم نے اپنے والد کا وصیت نامہ پیش کیا، چاچا حسین جب کربلا کا دن آئے تو میرے بیٹے قاسم کو قربانی کا موقع دینا۔ یہ پڑھ کر امام حسین کے آنسو بہنے لگے اور کمسن کو میدان میں بھیجا۔ قاسم نے شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ایک یزیدی نے گھوڑے کی لگام کاٹ دی۔ قاسم علیہ السلام زمین پر گرے اور پکارا، چاچا السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام بھاگے، دشمنوں کو ہٹایا، قاسم کا کٹا ہوا بدن گود میں لیا اور کہا، بیٹا، تیرے قتل کے بعد حسین پر موت بھی ہنسے گی۔ جب امام حسین نے علی اکبر کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تو خیمے کی طرف پلٹے۔ سیدہ زینب سامنے آ گئیں، چہرہ غم سے بجھا ہوا، دل بیٹے سے فراق سے بھرا ہوا، لیکن زبان پر صرف یہ تھا، بھیا حسین، میں زینب ہوں۔ اگر آج میرے بیٹے کو قربان نہ ہوا تو کل اماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ حضرت زینب کے دونوں بیٹے اون اور محمد ماں کی اجازت لے کر امام حسین کے پاس آئے۔ عمر کم تھی، قد چھوٹے، تلوار تھامنے کی ہمت بڑی۔ دونوں بھائیوں نے امام حسین سے کہا، ماموں جان، ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، ہم آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے نظریں جھکا کر پہلے تو انکار کیا، لیکن سیدہ زینب کی نظریں سامنے تھیں۔ امام حسین نے آہ بھری، فرمایا، ٹھیک ہے میرے شیر جوانوں، جاؤ، فاطمہ زہرا تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ پہلے محمد میدان میں گئے، خون میں ابال، دل میں حق کی آواز، دشمنوں کے سامنے نعرہ لگایا، میں نواسہ احسن ہوں جس نے معاویہ سے صلح کی لیکن یزید سے ذلت کی، صلح نہیں۔ محمد نے کئی دشمنوں کو جہنم رسید کیا، مگر آخر کار چاروں طرف سے تلواریں آئیں اور محمد زمین پر گرے اور اب ان کی باری تھی۔ اس نے بھائی کی لاش دیکھی، آنکھوں سے آنسو بہے مگر قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اون گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا، محمد کے قاتلوں، اب اون آ رہا ہے۔ اون علیہ السلام نے خون
जंग की दिलराना वार किया, लेकिन कमसनी, कमजोरी और दुश्मनी की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आखिरकार औन भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन मैदान में पहुंचे, दोनों बच्चों की लाशें उठाईं और आहिस्ता आहिस्ता खेमे की तरफ चलने लगे। खेमे के दरवाजे पर सदाए जैनब गूंज रही थी। इमाम हुसैन ने लाशें जमीन पर रखीं और सर झुकाकर कहा, जैनब, तेरे बेटे कामयाब हो गए हैं। जैनब ने बेटों के खून से भरे चेहरों को देखा, आंखों से आंसू ना बहाया, बल्कि आसमान की तरफ देख कर पुकारा, अल्लाह, जैनब की कुर्बानी को कबूल फरमा। यहाँ यह थे औन और मोहम्मद, जिन्होंने माँ की तरबियत, मामू की नुसरत और नाना के दीन के लिए अपनी कमसनी कुर्बान कर दी थी। इमाम हुसैन के दिल का सहारा उनका भाई अलमदार हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बाकी रह गए। अब्बास ने मैदान की तरफ देखा, खेमों की तरफ देखा, फिर इमाम हुसैन की तरफ देखा, कहा, मौला, अब इजाजत दीजिए, अब्बास सकीना की प्यास नहीं सह सकता। इमाम का दिल लरज गया। लरजते हुए फरमाया, अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम गए तो खेमे बेसहारा हो जाएंगे। मगर अब्बास ने झुकी आंखों से अर्ज की, मौला, लश्कर तो खत्म हो चुका है, अब बीबी सकीना की प्यास बाकी है। इमाम हुसैन ने इजाजत दी। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए, हाथ में अलम, कंधे पर तलवार, दिल में सिर्फ एक दुआ, या रब, सकीना का मस्कीजा भर कर लाना। अब्बास ने यजीदी सिपाहियों के नरगे को तोड़ा और नहरे फुरात तक पहुँचे। तेजी से पानी निकाला। जैसे ही लबों तक लाए तो दिल से आवाज आई, अब्बास, तू कैसे पिएगा जब हुसैन, सकीना और अली असगर प्यासे हैं। पानी वापस उड़ेला और मस्कीजा भरा। अब्बास अलसलाम ने घोड़ा मोड़ा। यजीदी सिपाही ताक में थे। एक ने वार किया, दायां बाजू कलम हो गया। अब्बास ने मस्कीजा बाएं हाथ में लिया। नफ्स अब्बास न डर, यह सिर्फ बाजू गए हैं। दूसरा हमला हुआ, बाया बाजू भी कलम हो गया। अब्बास ने मस्कीजा दांतों में पकड़ लिया और घोड़े को खेमे की तरफ दौड़ाया, क्योंकि बीबी सकीना की प्यास की फिक्र थी। एक बदबख्त ने हमला किया, सर पर वार किया और हजरत अब्बास जमीन पर गिर गए। अब्बास अलैहिस्सलाम ने पुकारा, या आका हुसैन अलैहिस्सलाम अलैकुम। इमाम हुसैन दौड़कर पहुंचे और अब्बास के कटे हुए जिस्म के पास बैठ गए। फरमाया, अब्बास, मुझे भी साथ ले चल, अब मेरा कमरबंद टूट गया। अब्बास ने अर्ज की, भाई, आंखों की रोशनी जा रही है, मेरी लाश खेमे तक ना ले जाना, बीबी सकीना ना देखे मेरे कटे बाजू। दोस्तों, यह वो अब्बास अलैहिस्सलाम हैं जिसे बाबुल हवाए जज कहा जाता है, जिसने पानी को भी वफा सिखा दी और करबला को भी शर्म दिला दी। अब्बास अलैहिस्सलाम का मस्कीजा खाली था, लेकिन कुर्बानी की किताब हमेशा के लिए भर गई। करबला की दोपहर थी, सूरज सवाने पर था। खेमे में एक गहरा सुकूत था, जहां सिर्फ तड़पते बच्चे की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसी खामोशी में बीबी रुबाब की आह निकली, मौला अली असगर प्यास से तड़प रहा है, इसका जिस्म ठंडा हो रहा है, कुछ कीजिए। इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब से इमाम असगर को झोली से उठाया, गोद में लिया, लबों को देखा, गर्दन को सहलाया और आहिस्तगी से खेमे से बाहर निकले। इमाम लश्कर यजीद के सामने आए। ना हाथ में तलवार थी, ना जुबान पर गजब, बस 6 माह के अली असगर को बुलंद करके कहा, ऐ लोगों, अगर तुम्हें हुसैन से दुश्मनी है तो बेशक करो, लेकिन इस बेजुबान
मासूम चीर ख्वार पर रहम करो, यह प्यासा है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। यह मंजर देख कर यजीदी लश्कर में सन्नाटा छा गया, कोई हिला न सका, कोई पलक न झपकी। उसी लम्हे जब इमाम हुसैन ने अली अस्कर को बुलंद किया तो अस्कर ने अपनी खुश्क उंगली हिलाई, एक मासूम सा इशारा जैसे कह रहा हो मुझे पानी दे दो। यह मंजर, वह उंगली, यह खामोश सवाल यजीदी लश्कर के सिपाहियों के दिलों को हिला गया। वह बहुत सिपाहियों की आंखें नीची हो गईं, कुछ सिपाहियों की आंखें भर आईं और लश्कर में खामोशी बगावत का आवाज होने लगा। इब्न साद ने जब लश्कर के चेहरों पर तब्दीली देखी, जब सिपाहियों की आंखें पिघलने लगी तो खौफजदा हो गया, चीख कर कहा, हरमला, हुसैन की बातें लश्कर को कमजोर कर रही हैं, जल्दी करो, तीर मारो। हरमला ने 3 नोकों वाला जहर भरा तीर कमान पर रखा और अगले ही लम्हे वो तीर चला तो अली अस्कर के नाजुक गले पर लगा। इमाम के दोनों हाथ खून से भर गए, न आँख झपकी, न जुबान से सदा निकली, बस आसमान की तरफ देखा और आहिस्तगी से, ऐ रब, हुसैन की यह कुर्बानी भी तेरी रजा में है। इमाम ने जमीन पर खून गिरने न दिया, हाथ खोल कर खून को आसमान की तरफ उछाला, फरमाया, ऐ जमीन गवाह रहना, आसमान तू भी गवाह रहना, हुसैन ने तेरे लिए अली अस्कर को कुर्बान कर दिया। इमाम ने छोटी सी कब्र खोद दी, अस्कर को दफन किया। जब वापस खेमे में आए तो बीबी सकीना दौड़ी आई, बाबा असगर कहाँ है? बाबा मेरे साथ खेलेंगे। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया और बस इतना कहा, बेटा असगर अब जन्नत के बच्चों के साथ खेल रहा है। वह मंजर जिसने करबला को कयामत में बदल दिया, जिस तीर ने एक चीर ख्वार को शहीद किया, उस तीर ने इंसानियत का दिल चीर दिया। करबला की रेत पर सन्नाटा तारी था, एक एक शहजादा, एक एक भाई, एक एक साथी हुसैन की आंखों के सामने करबला की खाक पर गिरा था। खेमों में सिसकियां बाकी थीं, बच्चे बाकी थे, मगर अब मैदान में हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले थे। सूरज और बुलंद हो चुका था, बेर तप चुकी थी, जमीन पुकार रही थी, ऐ हुसैन, अब तुम्हें भी कबूल करने का वक्त आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े की लगाम थामी, मगर फिर एक सदा आई, भाईजान रुकिए। बीबी जैनब भागती हुई आई, जिनके सर से चादर लटक रही थी, जिनकी कमर गम से झुक गई थी। उन्होंने इमाम के घोड़े की लगाम थामी और कहा, भाई, आज के बाद मेरा कोई साया नहीं रहेगा। मेरा दिल कैसे माने कि आप रुखसत हो रहे हैं। इमाम ने बहन को गले लगाया, पेशानी को चूमा और कहा, जैनब, मेरा दिल तुम्हारी आवाज से लरज रहा है, मगर करबला में यही तकदीर है। इमाम हुसैन ने जुलंजाह की पुश्त पर सवार होकर लश्कर की तरफ रुख किया, मगर जुलंजाह कदम न बढ़ा सका, क्योंकि जनाह के कदमों से बीबी सकीना लिपट गई थीं। बाबा, कहाँ जा रहे हो? अस्कर तो अभी अभी गया, अब आप भी जा रहे हो? इमाम हुसैन ने हाथ फैलाकर कहा, बेटी, बाबा भी जा रहे हैं, पर तुम्हारे लिए जन्नत में एक झूला लाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान में दाखिल होकर सदा बुलंद की कि कोई भी मुझे पहचानता हो, मैं नबी का नबाशा, अली का बेटा, फातिमा का नूर हूँ। लेकिन जवाब में तलवारें बुलंद हुईं, बर्छियों ने रुख बदला और अकेला हुसैन एक सिपाहियों के समंदर में उतर गया। अक्सर रिवायत में आता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 70 से ज़्यादा जख्म थे। नेज़े, तलवार, बर्छी,
तीर सब ने जिस्म छलनी कर दिया और हर जख्म के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा निकली, ऐ नाना देख लीजिए। हुसैन ने वादा पूरा कर दिया। जब इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से लरजने लगा तब जुलजना ने इमाम को वापस खेमे की तरफ दिखाया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, परवरदिगार, अगर यह कुर्बानी तुझे राजी करती है तो हुसैन राजी है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सजदा किया और उसी हालत में शहादत कबूल कर ली। उसी वक्त सिमर ने खंजर निकाला और इमाम हुसैन की गर्दन की तरफ बढ़ा। बीबी जैनब खेमे से बाहर निकल आई और पहाड़ की तरफ रुख करके पुकारा, ऐ मदीना के नबी, आग का नवासा सजदे में ज़िबह किया जा रहा है। जुलजना खेमों की तरफ दौड़ा बगैर इमाम हुसैन के। जब बीबी सकीना ने घोड़े को खाली देखा तो रोने लगी, मुझे छोड़ गए क्या, मैं प्यासी मर जाऊंगी। करबला की रेत गवाह है कि जंग नहीं हुई थी, कत्ल हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए मगर यजीद मर गया। तारीख में, जमीर में, दिलों में, करबला में, मैदान में खामोशी तारी थी, लेकिन जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा रेत पर कफन बेदफन पड़ा था। सर मुबारक तन से जुदा हो चुका था। सिमर ने झुककर नबी के नवासे का सर तन से जुदा किया। मक्तल में लिखा है, खंजर कुंद हो गया था। सिमर ने 12 बार चलाया तब जाकर सर जुदा हुआ। सर उठाया गया, एक स्याह थैली में रखा गया। इब्ने साद के हुक्म पर सर हुसैन का नेज़े पर बुलंद किया गया। खेमों को आग लगा दी गई, बच्चों को जंजीरों में जकड़ा गया, बीवी के सरों से चादरें छीन ली गईं और इमाम जैनुल आबदीन को शदीद बीमार थे, उन्हें जंजीरों से जकड़कर ऊंट पर बिठाया गया। बीबी जैनब ने हाथ बांध कर कहा, जुल्म करो मगर नबी की बेटियों पर हाथ ना उठाना। काफिला चला, नेज़ों पर इमाम हुसैन का सर था और बीबी जैनब, बीबी सकीना, बीबी उम्मे कुलसूम सब जंजीरों में बंधे नंगे सरों के साथ। बीबी सकीना कहती थी, अम्मी वो बाबा का चेहरा है ना, क्यों नेज़े पर ऊंचा रखा है? बाबा को तो हम नीचे बैठकर सुनते थे। जब काफिला कूफा पहुंचा तो बाजार में लोगों का तमाशा दिखाया गया। कुछ खामोश रहे, कुछ रोते हुए कहते, क्या ये वही हुसैन हैं जिनकी मेहंदी मदीना में नबी ने लगाई थी? बीबी जैनब ने काफिले वालों से कहा, हाय पर्दा दो, हम नबी की बेटियां हैं। मगर आवाज़ गूंजी, ये यजीद का हुक्म है, सर खुला रहेगा। कूफा की जामिया मस्जिद में जब लोग नारे लगा रहे थे तो बीबी जैनब ने चादर के कोने में चेहरा छुपाया और मिंबर पर खड़ी हो गईं। जो आवाज़ें अली की थीं वही लहजा, वही जलाल। ऐ कूफियों, तुमने हुसैन को कत्ल किया, अब आंखें नम करके नदामत दिखा रहे हो। तुमने जमीन को खून से रंग दिया और समझते हो जन्नत खरीद ली। सारा कूफा सन्नाटे में आ गया। इमाम जैनुल आबदीन मुसलसल जंजीरों में थे, चेहरे पर बुखार, जिस्म पर जरबों के निशान। जब एक कूफी ने कहा कि ऐ नौजवान, तुम कौन हो? तो इमाम ने सर झुकाकर कहा, मैं वो हूँ जिसके बाप को तुमने शहीद किया, जिसके भाई को तुमने तड़पा कर मारा और जिसकी फूफी का पर्दा तुमने लूटा। काफिला अब कूफा से शाम की तरफ बढ़ा। रास्ते में कंकरियां, आवाजें और तंजली। जहां जहां काफिला गुजरा लोगों को बताया गया, यह वो लोग हैं जो यजीद के खिलाफ बगावत करने आए थे। मगर बीबी जैनब और जैनुल आबदीन ने हर जगह हक की आवाज़ बुलंद की और बताया, हम बगावत करने नहीं, उम्मत को जगाने आए थे।
लोग दरों दीवार पर चढ़कर देख रहे थे। किसी ने पूछा, ये कौन लोग हैं, किस जुर्म में पकड़े गए हैं? तो जल्लादों ने कहा, ये वही हैं जो यजीद के खिलाफ उठे थे। बीबी जैनब ने यह सुना तो चादर के कोने से चेहरा छुपाया और आवाज तेज की और जलाल लाते हुए कहा, झूठ है, हम बगावत करने नहीं, बातिल को बेनकाब करने आए थे। छोटी सी बीबी सकीना ऊंट के पालान पर बैठकर बार बार पूछती, अम्मी बाबा कहाँ हैं? बाबा कहते थे सकीना को भी तन्हा ना छोड़ूंगा। बीबी रुबाब भी चीख निकल गई। बीबी जैनब का दिल फटने लगा। काफिला कूफा के गवर्नर इब्न जियाद के दरबार में पहुंचाया गया। नेजे पर हुसैन का सर था। इब्न जियाद तंजिया हंसी हंसता और इमाम जैनुल आबदीन से पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया, मैं अली हूँ। इब्न जियाद बोला, अली को तो मैंने कत्ल कर दिया। तो बीमार इमाम जैनुल आबदीन ने फरमाया, मेरे बाबा का नाम ही अली, चाचा का नाम भी अली, मेरे नाना का नाम भी अली, तो कितने अली कत्ल करेगा? इब्न जियाद ने बीबी जैनब को बुलाया। तमस्खुर करते हुए बोला, जैनब, अल्लाह ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? बीबी जैनब खड़ी हुई, चादर का किनारा अपने जख्मी चेहरे पर डाला और फरमाया, मेरे अल्लाह के सिवा कुछ नहीं देखा, बस वफा, कुर्बानी और सब्र। तू समझता है तू जीत गया, तू जल्द देखेगा तेरे जैसे जालिम फना होंगे। हुसैन का नाम सजदों में जिंदा रहेगा। पूरा दरबार सुन्न हो गया। इब्न जियाद ने हुक्म दिया कि जैनब को कैद में डाल दिया जाए, काफिले को कूफा की तरफ ले जाया जाए। बीबी जैनब, उम्मे कुलसूम, बीबी सुगरा, बीबी सकीना, इमाम जैनुल आबदीन जंजीरों में, रातों में तड़पते दिल में भूखे। बीबी जैनब बीबी सकीना को गोद में लेकर लोरी देती, बीबी सकीना, अभी सब्र करो, तुम्हारा बाबा जन्नत से झूला लेकर इंतजार कर रहा है। शाम के महलात में गहमा गहमी थी। यजीद तख्त पर बैठा और सामने रखा गया नबी का नवासा इमाम हुसैन का सर काफिले को लाया गया। बीबी जैनब नंगे सर, थकी हुई मगर चेहरा रोशन। इमाम जैनुल आबदीन जंजीर में, छोटी सी सकीना थकी हुई नजरों से चारों तरफ देखती। यजीद ने तंजिया लहजे में कहा, देखा जैनब, तुम्हारे भाई का क्या हाल किया? बीबी जैनब खड़ी हुई, सर झुकाया, चादर दुरुस्त की और मिंबर की तरफ इशारा किया और कहा, अय यजीद, तू समझता है कि तूने हमें शिकस्त दी? नहीं, तूने जुल्म किया, तूने जुल्म की बुनियाद रखी और हमने हक का परचम बुलंद किया। ना तो तू जीता और ना हम हारे हैं। यह वक्त गुजर जाएगा मगर सजदा हुसैन रह जाएगा। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। यजीद की नजरें झुक गईं। रात गहरी हो चुकी थी। शाम के अंधेरे में एक ठंडी सुनसान कोड़क के फर्श पर एक छोटी सी बच्ची बीवी सकीना नंगे सर, भूखी, जख्मी दिल लिए अपने बाबा हुसैन की याद में सिसकियां ले रही थी। बीबी जैनब ने कई बार अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछे, लेकिन यह तो आंसू थे जो सिर्फ बाबा के सीने पर रुक सकते थे। बीबी सकीना की हिचकियां तेज होती जा रही थीं। बार बार अम्मा रुबाब को झिझोड़ कर कहती, अम्मी बाबा वापस कब आएंगे? बाबा ने कहा था सकीना को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अम्मी बाबा बहुत देर कर रहे हैं। रुबाब ने बेटी को सीने से लगाया, अपनी चादर का किनारा उसके चेहरे पर रखा और रोते हुए कहा, बेटी, बाबा जन्नत के तख्त पर तुम्हारे लिए झूला लेकर बैठे हैं। नाजरीन, वो नन्ही सी बच्ची जिसकी प्यास का दरिया रोया, जिसकी चीखों ने करबला की रेत को हिला दिया, जो कभी बाबा की उंगली थामती थी, आज जिंदा नेशा में कैद थी।
उस रात बीवी सकीना की सिसकियां इतनी बुलंद हुईं कि यजीद की नींद टूट गई। उसने हड़बड़ाकर दरबारियों से कहा, यह कैदी बच्ची क्यों रो रही है? दरबारियों ने बताया, यह हुसैन की बेटी है, बाबा की जुदाई में तड़पती है, सोती नहीं सिर्फ रोती है। यजीद चीख पड़ा, उससे जान छुड़ाओ, जाओ हुसैन का सर उसके पास ले जाओ। थोड़ी ही देर में एक तख्त में इमाम हुसैन का सर मुबारक लाया गया। सर पर खाक, रेशम मुबारक में खून खुश्क हो चुका था। बीबी सकीना को कुछ समझ न आया, सिर्फ इतना कहा, यह किसका सर है? यह बाबा जैसा लगता है। जब बीबी जैनब ने रोकर कहा, सकीना, ये तेरे बाबा हुसैन का सर है, बीबी सकीना ने फौरन तख्त से सर निकाला, अपनी नन्ही सी गोद में रखा, माथे को चूमा और बिलख बिलख कर बोली, बाबा आप तो कहते थे बेटी को तन्हा न छोड़ूंगा, ये कैसा वादा था? बीबी सकीना की आंखें बंद होने लगी, कमर जंजीरों की चुभन से जख्मी, बाल गिरदा आलूद और नींद में वो मुस्कुरा रही थीं। अचानक बीबी सकीना के लबों से आवाज आई, बाबा आप आ गए, बाबा मुझे पानी पिलाएं, बाबा आपका सीना फिर से मेरे लिए है ना? बीबी रुबाब चौंक गईं। बीबी जैनब ने झुककर बीबी सकीना के माथे पर बोसा दिया तो चेहरा ठंडा था। आहिस्ता से सांस रुक गई। सकीना मेरी बच्ची, बीबी रुबाब की चीख बुलंद हुई। पूरे कैद खाने में मातम बिछ गया। बीबी जैनब ने सकीना को गोद में लिया, चादर से लपेटा और आसमान की तरफ सर उठाया, परवरदिगार एक और कुर्बानी कबूल फरमा, अब बीबी सकीना भी तुझसे जा मिली। यजीद ने जब सुना कि बीबी सकीना कैद में मर गई तो रिवायत है उसने अफसोस का इजहार किया, लेकिन कोई जनाजा, कोई कफन न दिया, बस एक चटाई दी गई और बीवी सकीना की लाश उस कैद खाने में दफन की गई। रिवायत के मुताबिक बीबी सकीना को कैद खाने के शहन में दफन किया गया और काफिला मदीने चला गया। कुछ रिवायतों में जिक्र है कि बाद में बीबी जैनब ने मदीना वापसी से पहले काफिले को रुकवाकर बीबी सकीना को रुखसत किया था। बाबा के सीने पर सोई थी सकीना, अब जिंदा इंशाह में सो गईं। सकीना न कफन, न पानी, न साया मिला, बस कैद मिली, मिट्टी में सो गईं। सकीना का दिन ढल रहा था। मदीना की फिजाओं में हवा रुक गई थी। वही मदीना जिसकी गलियों में कभी हसन और हुसैन खेलते थे, अब उसी मदीना के दरवाजे पर वो काफिला आ चुका था जिसमें ना इमाम हुसैन थे, ना कासिम, ना अब्बास, ना इमाम अली अकबर, बस चंद चादरें जख्म यादें थीं। जब मदीना वालों को खबर मिली कि काफिला अहले बैत शाम से वापस आ रहा है तो सब लोग दौड़ते हुए शहर के दरवाजे पर पहुंचे, बूढ़े जवान, औरतें, बच्चे, लेकिन सबकी जुबान पर एक सवाल था, बीवी जैनब कहाँ है? इमाम हुसैन कहाँ है? इमाम अब्बास, इमाम अली अकबर कहाँ हैं? बीबी जैनब ने दरवाजे मदीना पर कदम रखा तो जमीन से लिपटकर रोती रहीं और कहती जाती, ऐ मदीना, तेरा लाल लौट कर ना आया, मैं तेरी बेटी जैनब हूँ, मगर सर नंगा है, दिल छलनी और भाइयों का साया खत्म हो चुका है। मस्जिद नबी के सहन में लोग जमा थे, सबकी नज़रें जंजीरों से आज़ाद इमाम जैनुल आबदीन पर थीं, जिसकी कमज़ोर आँखों की नमी और चेहरे का नूर बोल रहा था। इमाम ने कदम रखा, धीमी, थकी मगर लरसती हुई आवाज में फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हें मालूम है हम कौन हैं? हम वो हैं जिनके सरों पर कुरान नाजिल हुआ, हम वो हैं जिन पर अल्लाह का सलाम है, हम वो हैं जिनके दर्द पर जिब्राइल आता है। तुमने सुना होगा इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र, लेकिन वो हम पर गुजरी, वो जुबान बयान नहीं कर सकती। ऐ मदीना वालों,
इमाम हुसैन को मेरे सामने ज़िबह किया गया। इमाम कासिम की लाश पर खेमा तरसता रहा। अकबर के सीने में बर्छी उतारी गई, अब्बास के बाजू कलम किए गए और हम कैद में डाले गए। बीबी सकीना की लाश कैद खाने में फर्श पर तड़पती रही। बीबी जैनब मेरे बाबा के सर के सामने दरबार में खड़ी रहीं। लोग मस्जिद में बैठे सिसक रहे थे, कोई दीवार में सर मार रहा था, कोई चीखें मार मार कर रो रहा था। बीबी जैनब ने मदीना की जानिब देखा और फरमाया, अय मदीना, मैं वही जैनब हूँ जो चादर में लिपट कर चलती थी। आज करबला का मातम लेकर वापस आई हूँ। हुसैन यह हाल था जब काफिला मदीना पहुँचा। दोस्तों, अगर हमने आपको हुसैन का हाल और करबला का हाल सुनाया है तो यजीद के बारे में भी बताना पड़ेगा कि जब यजीद पहली बार अकेले बैठा और सोचा, क्या मैंने रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल करवा दिया। यजीद अपने ख़ास दरबारियों से बार बार कहता, काश हुसैन के साथ ऐसा ना होता, मुझे तो सिर्फ हुकूमत कायम रखनी थी। लेकिन सिमर और इब्ने जियाद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मगर हकीकत यह थी, तमाम अहकामात यजीद ही के हुक्म से जारी हुए थे और वह खुद करबला की आग का खालिक था। मदीना, मक्का, कूफा, हर तरफ यजीद के खिलाफ नफरत फैलने लगी। लोग उसके दरबार में अपना आना छोड़ गए, उसके अपने जनरल मजारत करने लगे। अब हम साथ नहीं दे सकते। यहाँ से यजीद रोज रात शराब में खुद को भिगोने लगा। कभी रोता, कभी हंसता, कभी इमाम हुसैन का नाम लेता। करबला में ज़ाहिरी तौर पर यजीद जीता, मगर उसका अंजाम अल्लाह ने ऐसा लिखा कि वो शराब के नशे में डूबा हुआ मुंह से महरूम एक कुत्ते की मौत मर गया। अपनी शराब की महफिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाता, यहाँ तक कि नमाज तक तर्क कर देता। कई बार शराब के नशे में बीबी जैनब और अहले बैत की कैद पर कह लगाता। यजीद महल के गहरे तहखाने में जाकर छुप जाता, जहाँ ना रोशनी, ना हवा, ना कोई इंसान, सिर्फ शराब की बोतलें, एक कुत्ता और उसका बंदर साथ होता था। एक दिन उसकी ऐसी हालत हुई, वो तहखाने में लेटा बुखार से तड़प रहा था। जुबान पर अल्लाह का नाम नहीं बल्कि हुसैन हुसैन की सदाएं थीं। कपड़े शराब और पीप से भरे हुए, बदबू इतनी कि किसी ने करीब बैठने से इनकार कर दिया। यजीद बार बार जमीन पर लौटता, कहता, मुझे माफ़ कर दो हुसैन, मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया। वो सिमर था, मगर उसकी चीखें भी कबूल ना हुई। वो बार बार नबी कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद करता, मगर कोई तौबा उसके दिल से नहीं निकलती, सिर्फ नदामत, सिर्फ पछतावा। बाज मुर्किन लिखते हैं, जब यजीद का जनाजा उठा तो कुत्ता उसके पांव चाट रहा था और लोग पत्थर मार रहे थे। जिसने हुसैन जैसे पाक को प्यासा मारा, उसे न कलमा नसीब हुआ, न अजान, न बख्शिश। इस जुल्म में और भी कई चेहरे शामिल थे। किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने खेमे जलाए, किसी ने मासूम गले पर तीर छोड़ा और रब्बे हुसैन की अदालत में कोई भी बच न पा सका। अब आइए जिक्र करते हैं उन तमाम जालिमों का जिनका हाथ करबला के खून में टंगा था, जिस पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। सिमर जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटा। सिमर वो नाम जो जुल्म की अलामत है, जिसने सजदे में झुके नवासाए रसूल की गर्दन पर खंजर रखा। वही सिमर जब कूफा वापस लौटा तो लोगों ने उसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि खौफ देखा। मेरी गर्दन जल रही है, मुझे बचाओ, आग लिपट रही है। जब उसे पागल खाने में बंद किया गया तो
चीखें दीवारें हिलती थीं। वो ना खा सकता था, ना सो सकता था। उसका जिस्म झटकों से लरसता और एक दिन वो आग के दर्द में तड़प तड़प कर मर गया। कहा जाता है ना उसकी लाश को गुसल दिया गया, ना कफन। दोस्तों, अगर आपको हमारी बात बताई हुई करबला की कहानी पसंद आई हो और अगर आपकी आंखें नम हुई हों तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये कहानी पहुंचे और उसकी पूरी सच्चाई पता चले। और हम चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह की और भी कई बातें आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।